Hello students, welcome to your 8th maths class. I am Jyoti Sachdeva from SCJ DAV School Haripura. Today we are doing our chapter 14 mensuration. Today we will discuss the worksheet number 4. In this worksheet number 4, there is a total surface area and curved surface area of cylinder. Firstly, I will tell you what is the shape of cylinder. I have a paper. If I roll this paper like this and this is the shape of a cylinder. ये क्या है? एक सिलेंडर की शेप है, एक एम्प्टी सिलेंडर की. इस एम्प्टी सिलेंडर को बनाने के लिए जो ये शीट लगी, इसका टॉप भी ओपन है, बॉटम भी ओपन है, दोनों तरफ से कवर नहीं है. तो ये क्या है? सिर्फ इसकी कर्व आई है हमारे पास, दोनों के टॉप और बॉटम नहीं आए. तो दिस इज अ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. और कर्व सरफेस एरिया हमारे पास आएगा कैसे? देखो, ये एक रेक्टेंगुलर शेप थी, मींस इस रेक्टेंगुलर शेप का एरिया क्या होता है? L इंटू बी. अब इसकी क्या थी? ये जो लेंथ थी, इस लेंथ के थ्रू हमने रोल कर दिया तो क्या बन गया? इस लेंथ का क्या बन गया? एक सर्कल बन गया. ये इस सर्कल का क्या बना? ये सरकमफ्रेंस. मींस L की जगह पर हमारे पास सरकमफ्रेंस सर्कल का इट मींस 2 पाई r. और जो ये ब्रेथ थी वो हमारी क्या बन गई यहाँ पर? h. इट मींस वो क्या बन जाएगी? 2 पाई r h. वही चीज मैंने लिखा है कि ब्रेथ बनी हाइट और लेंथ क्या बन गई? बाउंड्री ऑफ सर्कल. तो इट मींस बाउंड्री क्या होती है? 2 पाई r. तो कर्व सरफेस एरिया क्या बन गया? 2 पाई r h. अब अगर हम इसका टॉप और बॉटम दोनों को कवर कर देंगे, दोनों के ढक्कन लगा देंगे, तो क्या बनेगा? इस 2 पाई r h में ढक्कन लगेगा तो वो पूरा का पूरा एरिया बन जाएगा. उसका सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई r स्क्वायर. अब एक टॉप के लिए और एक बॉटम के लिए, इट मीन्स क्या बन गया? 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर. इसमें से 2 पाई r कॉमन, तो यहाँ बचा h और यहाँ क्या बचा? r. इट मीन्स ये क्या है? जो फॉर्मूला है वो क्या हमारा? टोटल सरफेस एरिया का. नाउ लेट्स स्टार्ट द वर्कशीट नंबर 1. वर्कशीट नंबर 1 में फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? फाइंड द कर्व सरफेस एरिया and total surface area of a right circular cylinder whose height is 15 centimeter and the radius of base is 7. हाइट भी गिवन है, रेडियस भी गिवन है. हमने क्या करना है? उसका कर्व भी निकालना है, टोटल भी. फर्स्टली वी विल फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. द फॉर्मूला इज 2 पाई r plus h. Now fill the value. 7 plus 15, that is 22. Now in this 7 is 7 cut with 2 to that 44 into 22. Their multiplication is 968 centimeter square. Now curve surface area 2 pi r h. 2 into 22 by 7 into r की वैल्यू 7 है और h 15. And their calculation is 660 centimeter square. एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है. Now let's start the second sum. Second sum is the diameter of the base of the right circular cylinder is 4.2 decimeter. Decimeter में given and the height is 1 decimeter. Find the area of the curved surface in centimeter square. अब centimeter square में निकालना है, so we convert diameter to the centimeter. Centimeter में convert करने के लिए we will multiply it with the 10. It become 42 centimeter diameter and height become 10 centimeter. And for curved surface we will find the radius. Divide the diameter with 2, it's 21 centimeter. Now curved surface area of cylinder is 2 pi r h. 2 into 22 by 7 into r की वैल्यू क्या है? 21 and h 10. Now solve this. This is 1320 centimeter square. Next, third question is the curved surface area of cylinder is 1320 centimeter square and its base has a radius of 10.5. Radius given है 10.5 centimeter. Height निकालनी है. Apply the formula 2 pi r h and fill the value of curved surface area. Fill all the values except h. h के बिना सारी वैल्यू फिल की. अब h की वैल्यू निकालनी है. Take these values to the other side.
7 multiply with the 1320 and other numbers divide this given number and their solution is 20. It means value of h is 20 centimeter. Now see the fourth question. The circumference of the base of cylinder is 176, means 2 pi r is 176 and its height is 65 centimeter. Both the things are in centimeter. Now apply the formula 2 pi r h. 2 pi r की अलग से value, it means 176 into 65 and their calculation is 11,440 centimeter square. Fifth question is the radii of two cylinders are in the ratio. Radii ratio में है, so take r1 is equals to 2x and r2 is equals to 3x and their heights are also in the ratio 5:3. अगेन h1 इज इक्वल्स टू 5. अब x वेरिएबल नहीं लेना क्योंकि हम x ऑलरेडी ले चुके हैं. सो टेक y, 5y एंड 3y. कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द कर्व सरफेस. रेशियो निकालनी है कर्व सरफेस की. तो क्या बनेगी, c1 के लिए हम r1 c1 h1 ले लेंगे, 2 पाई r1 h1 और सर्कल 2 के लिए 2 पाई r2 h2. वैल्यू फिल करेंगे 2 पाई के साथ, तो 2 पाई यहां भी कट कर सकते हैं. r1 की वैल्यू 2x इंटू 5y, 3x इंटू 3y. y से y कट गया, x से x means 2 5s are 10 and 3 3s are 9. It means 10:9 is the answer of this question. Now let's start the next question. Sixth question is the outer diameter of the gas cylinder is 20 centimeter. Gas cylinder का बाहर वाला diameter given है, then radius is 10 centimeter. Find the cost of painting of its outer curve surface area. कर्व सरफेस को पेंट करना है, सिर्फ कर्व सरफेस को 4 पर स्क्वायर सेंटीमीटर से. इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 70, हाइट भी गिवन है. कर्व सरफेस का फॉर्मूला 2 पाई आर एच, 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 10, एच की 70, देन 7 कट विद द 70, 10. देयर कैलकुलेशन इज 4400 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर. अब इतना एरिया हमें पेंट करना है, तो कॉस्ट ऑफ क्या बन जाएगी, 1 की 4 है तो 44 की क्या बन जाएगी, ₹17,600. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेंड्रिकल वेसल ओपन एट द टॉप. टॉप से ओपन एंड हैज अ रेडियस 10 सेंटीमीटर, हाइट 14 है. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल. वेसल अब कर्व सरफेस तो लेंगे ये, अब टॉप से ओपन है तो बॉटम का तो लेना है, तो साथ में बॉटम वाले का एरिया प्लस. अब पाई आर कॉमन लेके now calculate it. Their answer is 1193.2 centimeter square. Simple question है very. Next है 8th sum. The length of the roller is 40 centimeter and its diameter is 21 centimeter. एक रोलर है, जैसे ये है, ये रोल हो रहा है, उसकी डायमीटर गिवन है रोलर की और लेंथ गिवन है. It takes 300 complete revolution to move once over to level the floor of room. फ्लोर के लेवल करने के लिए देखो, एक रोलर जो है उसमें ना तो टॉप रोलर है, अगर हम इस स्टैंड में लें तो ना तो उसका टॉप आएगा ना ही उसका क्या आएगा, बॉटम. दोनों चीजें नहीं हो रही, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया यूज हो रहे हैं. हाइट गिवन है, डायमीटर गिवन है, वी विल फाइंड द रेडियस. कर्व सरफेस एरिया कितना आ गया, 2 पाई आर एच. इसको सॉल्व करेंगे 2640. अब उस एक से उसने टोटल राउंड कितने लिए, 300 पूरे के लिए. एक का एरिया इतना, एक में उसने इतना एरिया कवर किया, तो 300 राउंड में उसने टोटल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कर दिया. हमें किस में निकालना है, मीटर में, मीटर स्क्वायर में. अब एरिया मीटर स्क्वायर में है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं. अब सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 100 का भी स्क्वायर, इट मीन्स 10,000 से डिवाइड करेंगे, ये क्या बन जाएगा, 79.2 मीटर स्क्वायर. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. ए क्लोज्ड मेटेलिक सिलेंडर हैज बेस डायमीटर 56. बेस डायमीटर गिवन है, आर फाइंड करेंगे, एंड इट इज 2.25 मीटर हाइट. हाइट भी गिवन है. फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मेटेलिक यूज टू मेक इट. द कॉस्ट ऑफ ₹80 पर स्क्वायर. अब 56 सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, इसको 100 से डिवाइड. अब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर, आर प्लस एच. वैल्यू फिल करके कैलकुलेट करेंगे, क्या आ गया, 4.4528. 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है, ₹80.
4528 के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 356.24224 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर इज 22 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 10 सेंटीमीटर इन विड्थ। लेंथ और विड्थ गिवन है। इट इज रोल्ड इनटू द सिलेंडर अलोंग इट्स लेंथ। लेंथ के अकॉर्डिंग रोल किया, जैसे मैंने फर्स्ट में एग्जांपल दिया तो उसकी लेंथ मींस उसका वो बन गया सर्कमफ्रेंस 2πr 22 और यहाँ 2πr इंटू आर आपको क्या दिया हुआ है 22। वैल्यू फिल करके हमने आर की वैल्यू निकाल ली 7/2। हाइट हमें 10 गिवन है, फिल करके हम क्या निकाल लेंगे इसका कर्व सरफेस एरिया। लेंथ के अकॉर्डिंग फोल्ड किया तो वो 22 हो गई, मीन्स 2πr 22 और हाइट हमें यहाँ पर गिवन है 10 सेंटीमीटर। उसके अकॉर्डिंग हम सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इज सिलेंड्रिकल वेल, एक कुआं है इन 21 मीटर डीप, हाइट उसकी 21 मीटर होगी। इट्स आउटर एंड इनर डायमीटर आर 21 मीटर एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली। आउटर डायमीटर भी गिवन है, इनर भी, तो हम आउटर और इनर रेडियस निकाल लेंगे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ रेनोवेटिंग इनर कर्व सरफेस एरिया एंड आउटर कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 25 पर मीटर स्क्वायर। आउटर और इनर दोनों का कर्व सरफेस एरिया रेनोवेट करवाना है, तो हम कर्व सरफेस एरिया आउटर का निकाला 2πr से 2πr से इनर को निकाला, तो टोटल रेनोवेटेड एरिया कितना हो गया, दोनों को प्लस करेंगे क्या आ जाएगा 2310 मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितनी है 25 और 2310 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी आ जाएगी 2310 इंटू 25 57750। पहले आउटर का फिर इनर का कर्व सरफेस एरिया निकाला, टोटल कर दिया तो टोटल रेनोवेटेड एरिया आ जाएगा कितने। उसके बाद इसको क्या कर देंगे हम कॉस्ट निकाल देंगे 25 से मल्टीप्लाई करके। नाउ वर्कशीट नंबर 4 इज कंप्लीटेड। थैंक यू।